Hi, this is Ritvik Sharma. Welcome back to my channel Simplified Psychopathology. In my last video, I talked about parasomnia and sleep disruptive disorder. In my this video, I will talk about hypersomnia. What is hypersomnia? Management and treatment of hypersomnia, causes of hypersomnia, and how do you diagnose hypersomnia? Okay, and we will talk about everything about hypersomnia. Okay, so let's talk about what is hypersomnia. So hypersomnia is a condition in which you feel extreme daytime sleepiness. Okay, daytime sleepiness भाई आप जब पूरे डे में आप सोने के ऐसा फटीगनेस होगी, आप सोने के सिम्टम्स आएंगे, आपको स्लीपीनेस होगा, एडिकेट, और ये बार बार होगा. इफ यू हैव हाइपरसोम्निया यू विल फील फॉल asleep at several due times during the day. बार बार आप डे में सोने की सो जाओगे. ठीक है. हाइपरसोम्निया affects your ability to function at work and socially affects your quality of life. आपका फंक्शन एट वर्क अफेक्ट करता है, एबिलिटी टू फंक्शन वर्क अफेक्ट करता है, लाइफ को सोशली अफेक्ट करता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीजेस योर चांस ऑफ एक्सीडेंट. आप बार बार आपको नींद आ रही है, झपकी आ रही, दैट इज व्हाट यू से झपकी. ओके, झपकी आ रही है बार बार, एंड उस वजह से आपको एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब हो सकती है. आप बैठे बैठे सो सकते हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आपको तुरंत नींद आ सकती है. दैट इज व्हाट इज हाइपरसोम्निया इज. हु गेट्स हाइपरसोम्निया, किन किन को हो सकता है हाइपरसोम्निया? इज मोर कॉमन इन फीमेल्स देन मेल्स. It's thought to affect about 5% of the population. It's usually diagnosed in adolescence or young adulthood. ज्यादा फीमेल्स हो सकता है. ठीक है. अब सिम्टम्स क्या है यहाँ पे? कॉन्स्टेंट रिकरेंट एपिसोड ऑफ एक्सट्रीम स्लीपीनेस ड्यूरिंग द डे. बहुत ज्यादा एपिसोड हो सकते हैं स्लीपीनेस के ड्यूरिंग द डे. स्लीपिंग लॉन्गर देन एवरेज. बार बार एवरेज टाइम जो है 8 to 10 आवर्स, उसके ज्यादा हो सकता है. डिफिकल्टी वेकिंग अप इन द मॉर्निंग. ऐसा लग बहुत ज्यादा फटीग होगा, बहुत ज्यादा एंजाइटी होगा, एंजाइटी इरिटेबिलिटी हो सकती है, डे टाइम नैप्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और आपका अलर्टनेस एकदम से इंप्रूव नहीं होगा. इवन इफ यू आर डूइंग डे टाइम, बहुत जब आप डे टाइम नैप्स लेते हो तो यू फील रीस्टोर्ड. But in this hypersomnia, you don't feel restored. You will have anxiety, you will have decreased energy, you have restlessness, slow thinking, slow speech, headaches, loss of appetite, and hallucination. Okay. What causes hypersomnia? The cause of the most cases of hypersomnia remains unknown. Researchers have looked at potential roles of neurotransmitters in the brain and cerebrospinal fluid, including hypocretin. हाइपोक्रेटिन के उस पे बेसिस पे भी आपका हो सकता है हाइपरसोम्निया. डोपामीन, हिस्टामीन, सेरोटोनिन एंड गाबा की वजह से भी हो सकता है. A genetic link may be possible since a family history is present in up to 39% of people with idiopathic hypersomnia. Researchers are also exploring the role of certain genes in circadian rhythm that may be different in people with idiopathic hypersomnia. अब circadian rhythm के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा है. Okay, please go ahead and check this video on circadian rhythm and sleep stages if you have not checked it. Okay, डायग्नोसिस में क्या क्या कर सकते हैं? पॉलीसोमनोग्राफी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके स्लीप स्टेजेस और पूरा सर्केडियन रिदम चेक करते हैं, फिर आपके स्लीप को स्टडी करते हैं, आपके ब्रेन वेव्स को मैपिंग करते हैं, फिर उसके बाद आपका डायग्नोस करते हैं कि आपको हाइपरसोम्निया है कि नहीं है. मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट, आपके जो स्लीप के जो अकॉर्डिंग है, आपके इलेक्ट्रोड्स को चेक डाल के, आपके इलेक्ट्रोड्स आपके ब्रेन में लगा के, फिर आपके 20 मिनट्स नैप ट्रायल्स को चेक करके देखते हैं कि आप इफ यू आर एक्चुअली getting restored or not, and why you are facing this problem. Okay, then we will talk about sleep questionnaires. आपको sleep के questionnaires दे सकते हैं Epworth sleepiness scale पे, and then you have to you have to answer that sleep questionnaires, and then according to that diagnosis can happen. According to diagnostic criteria of DSM-5, and experience excessive sleepiness. ठीक है. Get more than 9 hours of sleep. Don't fully awake after an abrupt awakening. Okay. Experience hypersomnia at least 3 times a week. आपको ये 3 times a week हो रहा है for at least 3 months, तब आप इसको diagnose कर सकते हो. That is hypersomnia. अब इसमें टाइप्स ऑफ हाइपरसोम्निया में क्या है? सेकेंडरी हाइपरसोम्निया. अब ये हाइपरसोम्निया क्यों हो रहा है? ड्यू टू मेडिकल कंडीशन. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज secondary hypersomnia. Okay, and in this hypersomnia it can be because of anemia, epilepsy, hypothyroidism, encephalitis,
multiple sclerosis, Parkinson disease, obesity, obstructive sleep apnea. We will talk about another sleep disorder, delayed sleep phase syndrome, multiple system atrophy, myotonic dystrophy. इस वजह से भी ये हाइपरसोमनिया हो सकता है। अब हाइपरसोमनिया ड्यू टू मेडिकेशन और अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है। आप बहुत ज्यादा सेडेटिव्स ले रहे हो, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रहे हो, तो यू और एंटी एंजाइटी पिल्स ले रहे हो, तो क्या होता है, डिप्रेशन वाली पिल्स ले रहे हो, तो क्या होता है कि बार बार आपको नींद आएगी, you will not your body movement would be slow, and if mood disorders ki aap, if you're taking pills, the you barbiturates, melatonin and benzodiazepine, if you're taking, you can get problems, and that is why you can get hypersomnia due to not getting enough sleep. यहाँ पे आप अच्छी तरीके से सो नहीं रहे हो, that is why your body can feel that you're having fatigueness and you're having problems. That is what you can say. अगर आपका स्लीपिंग रूटीन अच्छा नहीं है तो आपको तब भी हाइपरसोमनिया हो सकता है इनसफिशिएंट स्लीप की वजह से। ओके, प्राइमरी हाइपरसोमनिया में क्या होता है? प्राइमरी हाइपरसोमनिया, यहाँ पे हाइपरसोमनिया का खुद अपना कंडीशन है, किसी और वजह से हाइपरसोमनिया नहीं हो रहा है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कंडीशंस है यहाँ पे: नार्कोलेप्सी 1, नार्कोलेप्सी 2, क्लेन लेविन सिंड्रोम एंड इडियोपैथिक हाइपरसोमनिया। अब नार्कोलेप्सी 1 में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ नार्कोलेप्सी आल्सो कॉल्ड नार्कोलेप्सी विद कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी, इसमें सडन मसल वीकनेस होता है ट्रिगर्ड बाय इमोशंस। आपको सडन मसल वीकनेस हो सकता है इमोशंस के वजह से, कॉज्ड बाय हैविंग अ लो लेवल ऑफ ब्रेन एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आपका ब्रेन का जो लेवल है वो, इस पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका जो है वो कम हो सकता है, और हाइपोक्रेटिन जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी प्रॉब्लम से भी हो सकता है। और डे टाइम नैप्स में आपका जो यूजुअली शॉर्टर और रिफ्रेशिंग होती है, एंड इसमें आपका hypersomnolence हो सकता है। Narcolepsy type 1 commonly begins between the age of 10 to 25. Hallucination and sleep paralysis are more common in that. Narcolepsy type 2 में आपका क्या है? This type of narcolepsy doesn't include cataplexy, इसमें cataplexy नहीं होती है। Narcolepsy type 2 has less severe symptoms and normal level of hypocretin. इसमें hypocretin आपका normal level होता है, इसमें आपका narcolepsy type 1 में hypocretin normal नहीं, नार्कोलेप्सी हो सकती है। नार्कोलेप्सी टाइप 2 कॉमनली बिगिंस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। यहाँ पे एडोलेसेंस बाद 20% लोगों को होता है, 80% लोगों को नार्कोलेप्सी टाइप 2 ही होती है। वी विल टॉक अबाउट नार्कोलेप्सी मोर इन डिटेल इन माय अदर वीडियो। ओके, क्लेन लेविन सिंड्रोम क्या है? दिस कंडीशन कंसिस्ट ऑफ रिकरिंग एपिसोड्स ऑफ एक्सट्रीम हाइपरसोमनिया। बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं एक्सट्रीम हाइपरसोमनिया के। इट यूजुअली ऑकर्स विद मेंटल, बिहेवियरल, समटाइम्स साइकियाट्रिक डिस्टर्बेंसेस। आपको साइकोसिस, हेलुसिनेशन और ये सब भी हो सकते हैं, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। ईच एपिसोड कैन लास्ट अप टू 10 days। एक एपिसोड आपका 10 days तक लास्ट कर सकता है, सब एपिसोड लास्टिंग सेवरल वीक्स तक लास्ट कर सकता है। इफ यू हैव क्लेन लेविन सिंड्रोम, यू हैव नॉर्मल अलर्टनेस एंड फंक्शनिंग बिटवीन एपिसोड्स। एपिसोड्स के बीच में अलर्टनेस हो सकती है एपिसोड्स के बीच में। इट मेनली अफेक्ट यंग मेल्स। एपिसोड डिक्रीज ओवर 8 to 12 years। आपका एपिसोड डिक्रीज हो सकते हैं बाद में। इडियोपैथिक पीस, नो नोन कॉज, सो आपका कॉज ही नहीं है इसका अब तक जो पता नहीं चला है। सो इडियोपैथिक हाइपरसोमनिया मींस यू फील एक्सट्रीम स्लीपी फॉर अननोन रीजंस। कोई रीजन की वजह आप एक्सट्रीम स्लीपी फील करते हैं, इवन आफ्टर लॉन्गर देन adequate amount of 9 to 10 hours इसके बाद भी you feel like you're filled with anxiety, you're fatigued. What is idiopathic? अब आपको मैनेज कैसे कर सकते हो? वेकफुलनेस प्रोमोटिंग एजेंट्स आप मेडिसिन सकते हो जो वेकफुलनेस आपकी को आप प्रमोट करेंगे, ठीक है। Psychostimulants including like amphetamine, methylphenidate, ये आप यूज कर सकते हो as drugs if your doctor is prescribing it. Other drug options, so it can be flumazenil, clarithromycin, ये आपके डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। It's important to see your sleep specialist for follow-up appointments। बार बार आप जाइए, आपके अपॉइंटमेंट्स लीजिए और चेक करिए। लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या सकते हैं? वही मेंटेन गुड स्लीपिंग हैबिट्स। आप अच्छे टाइम पे सोइए, और क्या रूम का जो टेम्परेचर है उसको कम रखिए। एयर वाला रूम होना चाहिए। प्रॉपर विंडोज शुड बी देयर, प्रॉपर एयर मूवमेंट शुड बी देयर। कैफीन इनटेक आपका कम होना चाहिए। एक्सरसाइज बिफोर बेड टाइम नहीं करनी चाहिए। दैट इज व्हाट विच कैन डू। सो दिस इज ऑल अबाउट
hypersomnia. In my next video, I will talk about narcolepsy. Okay, and if you have any questions regarding hypersomnia or any sleep disruptive disorder, any sleep stages, please comment in my comment section. Okay, and if you took and in my next series of videos, I will give you shorts on cognitive behavioral therapy, what is cognitive behavioral therapy, and also sleep related disorder in shorts. Okay, and now this is all about hypersomnia. In my next video, I will talk about narcolepsy. Thank you.